السلام علیکم ناظرین، 40 خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ ایس سی زمرہ بندی مسودہ بل کو کابینہ میں منظوری، 42% BC تحفظات کی فراہمی اور بجٹ اجلاس کی تاریخ و خطیت دینے پر بھی تبادلے خیال۔ MLC نشست پر کانگریس کی شکست، BJP اور BRS کی ملی بھگت۔ بہت جلد BJP کو بھی اس طرح کا تحفہ دیا جائے گا، سریدر بابو کی پریس کانفرنس۔ ریاستی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا وزراء نے کیا افتتاح، سابق وزیر اعلیٰ کے کیمپ آفس کو گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور ڈبل بیڈ روم مکانات کے فرضی الاٹمنٹ کا ریکٹ بے نقاب، 4 افراد بشمول خاتون گرفتار، ساؤتھ زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ SC زمرہ بندی مسودہ بل کو ریاستی کابینہ میں منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں ہوئے کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے لیے گئے۔ SC زمرہ بندی کے مسودہ بل کو لے کر بعد میں کوئی قانونی پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں، اس کا جائزہ لینے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی تاکہ بجٹ اجلاس میں اس کو پیش کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ یادگیری گٹا بورڈ سے متعلق انڈومنٹ ترمیمی بل کو بھی کابینہ میں منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ 42% تحفظات BC کو فراہم کرنے سے متعلق فیصلہ کیا ہے۔ MLC کوٹے کے MLC ٹکٹ اور اسمبلی کے بجٹ اجلاس کی تاریخ و خطیت سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔
रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस ने मिलकर ये रमजान का गिफ्ट कांग्रेस को दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बी संजय की तरफ से दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि हमने बीजेपी को कई तोहफे दिए हैं, हमको जो तोहफा दिया है वो बीआरएस से मिलकर दिया गया है, बहुत जल्द बीजेपी को भी तोहफा देंगे। श्रीधर बाबू ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस के दरमियान खुफिया मुआहदा मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं और ग्रेजुएट इंतखाबात में वोटर्स के फैसले की हम इज्जत करते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त देने के लिए बीजेपी और बीआरएस ने खुफिया मुआहदा किया है। इन दोनों पार्टियों का फेविकॉल का जोड़ है। बीआरएस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को नहीं ठहराया। बीआरएस के सीनियर लीडर रविंदर सिंह को कितने वोट मिले, बीजेपी के हक में बीआरएस ने काम किया है। క్రియాశీలకంగా పనిచేసిన మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకి నాయకులందరికీ హృదయపూర్వకంగా మేము వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఫలితం ఏమొచ్చినా కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి క్రియాశీలకంగా అభ్యర్థిని గెలిపియాలని ఆలోచన చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంలో మేము తెలియజేసింది ఒకటి స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఏ విధంగానైతే బీజేపీతోని మమేకమై బీఆర్ఎస్ నడిచిందో అదేవిధంగా ఈరోజు మరొక మారు తీవ్ర ప్రయత్నం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని ఓడగొట్టాలని బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం యావత్తు మొత్తం బీజేపీకి సపోర్ట్ చేయడం స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. మొదటిగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వారి పార్టీకి సంబంధించిన అభ్యర్థిని నిలబెట్టలే. ఎందుకు నిలబెట్టలే? మన రాష్ట్రంలోనే పట్టభద్రులకు సంబంధించి మరి వరంగల్, నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాలకు సంబంధించిన పట్టభద్రుల శాసన మండలి ఎన్నికల్లో तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कौंसिल के टीचर्स और ग्रेजुएट जमरे के इंतखाब में बीजेपी की तायदी उम्मीदवारों की कामयाबी पर कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों को वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। ताहम उनका कहना था कि हम इंतखाबी नताइज का मुहासिबा करेंगे। ఇది 42 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ఓటరు. ఇదే మొత్తం కొలమానం కాదు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో 2 ఓట్లు కూడా 2000 ఓట్లు కూడా లేవు. గ్రాడ్యుయేట్ ఓ నియోజకవర్గంలో కరీంనగర్ లాంటి దగ్గర 30,000 ఉండొచ్చు. 42 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించింది కాబట్టి దాంతో పాటు ఈ మాట కూడా ఇస్తున్నా, ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో 2000 ఓట్లు కూడా లేవు. ఓ నియోజకవర్గం కరీంనగర్ లాంటి దగ్గర 35,000 ఉండొచ్చు. 50% కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించే. నేను మళ్ళీ ఏమంటున్నా కూడా అంటున్నా, ఎన్నైనా మేమేం పెద్ద దూరంగా కిలోమీటర్ల గ్యాప్ తోటి ఓడిపోలే. మేము కూడా దగ్గర దాకా ఉంటుంది. ఆ చెల్ల రోడ్లంతా మెజార్టీ కూడా రాలే కదా వాళ్ళకు అంటున్నా. तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने टीचर्स और ग्रेजुएट जुमरे में बीजेपी के हिमायती उम्मीदवारों की कामयाबी को बड़ी कामयाबी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को बचाने का सही वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि कौंसिल के इंतखाबात में बीजेपी के हामी उम्मीदवारों की कामयाबी सियासत का एक नया मोड़ है। तेलंगाना इंटरमीडिएट साले दुअम का जुमेरात को इम्तिहान हुआ है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इम्तिहान के औकात रखे गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ के पास इम्तिनाई अहकामात भी नाफिज किए गए हैं। 5 मिनट ताखिर से पहुंचने पर भी इम्तिहान लिखने की इजाज़त दी जा रही है। ताहम इम्तिहानी मराकज़ में तलबा को कोई भी किस्म की घड़ी साथ रखने की इजाज़त नहीं है। तलबा की शिकायत रही है कि घड़ी भी उनके साथ रखने की इजाज़त नहीं है, जबकि इम्तिहान हाल में भी घड़ी नहीं लगाई गई। इस सिलसिले में बोर्ड के जिम्मेदारों से तवज्जो देने की अपील की गई है। बेगमपेट में प्रजा भवन के अहाते में स्टेट गेस्ट हाउस का वज़रा पूनम प्रभाकर, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर स्टेट गेस्ट हाउस भवन के मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, इमारत शवारे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कोमाटी रेड्डी ने कहा कि माजी में कांग्रेस के वज़ीर आला की कैंप ऑफिस के लिए इस्तेमाल होने वाली इमारत को असरी तौर पर तरक्की देकर इसे गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत के ओहदेदार दीगर रियासतों के ओहदेदारों के क़याम के लिए इमारत इस्तेमाल होगी। दीगर रियासतों से आने वाले मेहमानों के लिए होटल कमरे को बुक करने के बजाय स्टेट गेस्ट हाउस को इस्तेमाल किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंचार्ज तब्दीली कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने हुकूमत को निशाना बनाने वाले बयान दिए हैं। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि ओहदा अवाम देती है, पार्टी आला कमान नहीं है।
मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि ये हुकूमत अवामी एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर रही है। मीनाक्षी नटराजन ने नुमाइश मैदान में मुनक्किदा प्रोग्राम में हुकूमत को निशाना बनाया। एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि 3 बार मल्लना के साथ एक इंसाफ। प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस के अब ड्रामे चलने वाले नहीं हैं। एमएलसी के नताइज ने इसका खुलासा कर दिया है। वरंगल खम्मम नलगुंडा टीचर्स जुमरे के तहत रुकन कौंसिल मुंतखब हुए पीआरटीयू के श्रीपाल रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुमेरात को उनके क़यामगाह जुबली हिल्स पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर श्रीपाल रेड्डी ने अवामी हुकूमत के लिए मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इसके अलावा टीचर्स के मसाइल की यकसुई के लिए भी हुकूमत से नुमाइंदगी करने का अहद किया। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को आज उस वक्त झटका लगा जब रियासती हाईकोर्ट ने लागचरला और हकीमपेट में आराजी हुसूल की कार्रवाई पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि लागचरला और हकीमपेट में देहातों में आराजी हुसूल के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे इसे मनसूख किया जाए। मौजिज अदालत की बेंच ने दोधालिया और हकीमपेट के 2 किसानों की तरफ से आराजी हुसूल के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त पर यह अबूरी अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत की तरफ से पहले फार्मा कंपनियों के क़याम के लिए आराजी हुसूल के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया गया था, ताहम मुकामी किसानों के एहतजाज पर इससे दस्तबरदारी अख्तियार की गई थी। बीआरएस पार्टी के कारगुजर सदर केटीआर ने कहा कि एसएलबीसी टनल में हादसा होगा, ये बात पहले से हुकूमत को मालूम थी। उन्होंने कहा कि एसएलबीसी टनल में हादसा होगा पहले 2 रिपोर्ट में कहा गया था, लेकिन हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी। मजदूरों की जानों को खतरे में डालकर हुकूमत ने लापरवाही का मुजाहरा किया। जिन इलाकों में काम हो रहा है इस इलाके को रेड जोन कहा जाता है, ये बात रिपोर्ट में मौजूद है, लेकिन हुकूमत ने कमीशन की खातिर कामों को जारी रखा है। इससे पहले जो रिपोर्ट दी गई थी इसके मुताबिक ही हादसा पेश आया। 8 खानदान दरहम बरहम हो गए, हजारों करोड़ रुपए की रकम ज़ाय हो रही है। वज़ीर आला के साथ रियासत की काबीना वज़रा इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। केटीआर ने अदालत की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराने का मुतालबा किया। चंद्रायन गुट्टा डिवीजन के कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब की जानिब से दावते इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा की मुख्तलिफ डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स सिद्दीक बगदादी के अलावा मजलिस की इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याखुतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जुमेरात को गंगानगर नाले के कामों का मुआयना किया। नाले का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नाले से मुतालिक सड़क के काम को भी मंजूरी मिल चुकी है। हैदर होटल से मौला के छिल्ले तक सड़क का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मानसून से कबल इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को कामों की तकमील से मुतालिक जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असम्बली चार मीनार में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि अरबों की मस्जिद काजीपुरा में 9.5 लाख रुपए लागती सीसी रोड बिछाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते में यह काम मुकम्मल हो जाएगा। बाद में मीर जुल्फ़िकार अली ने शालीबंडा की मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा करके अवाम के मसाइल की समाअत की और एकसुई का तयख़ुन दिया। इस मौके पर रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा मजलिस की इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा करके तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने फलकनुमा डिवीजन में जारी रेलवे ओवरब्रिज के कामों का भी मुआयना किया और प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर रणमस्तपुरा डिवीजन के रुकन बलदिया मोहम्मद कादर और नवाब साहब कुंटा के कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा मजलिस की इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने बैन रियासती गांजे की मुंतकिली के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक ब्रह्मापुर उड़ीसा से हैदराबाद को गांजा मुंतकिल करने की कोशिश करने वाले अनंतरायत और सुरेश बड़ारिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनका एक साथी किरण फरार हो गया है। इन तीनों का ताल्लुक रियासत उड़ीसा से है। रेलवे पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर मुसाफिरीन की तलाशी शुरू कर दी। मुलजमीन से पूछताछ की तो उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजमीन के कब्जे से रेलवे पुलिस ने 5,30,000 रुपये मालियती ज़ायदा 10 किलो गांजा, 2 मोबाइल फोन्स के अलावा ट्रेन के टिकट्स बरामद किए हैं।
वजीर इंचार्ज हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने अंबरपेट में डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर सिटी पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि पुलिस अवाम के रिश्ते को मजीद इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी आराजियात की निशानदही करने पर फायर ब्रिगेड और दीगर सरकारी दफातर की इमारतें तामीर की जाएंगी। कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद, साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव, मुख्तलिफ सियासी कायदीन, पुलिस के आला ओहदेदार इस तकरीब में शरीक थे। साउथ जोन टास्क फोर्स और छतरी नाका पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में डबल बेडरूम मकानात दिलाने के फर्जी अलॉटमेंट लेटर्स फराहम करने वाली 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि छतरी नाका की साकिन ज्योति अपने साथियों सुनील सिंह, रमेश और नितिन कुमार के साथ मिलकर यह रैकेट चला रही थी। ये टोली बर्थ, डेथ और कास्ट सर्टिफिकेट भी फराहम किया करती थी। आवाम का भरोसा हासिल करने के बाद इस टोली ने डबल बेडरूम मकानात के फर्जी अलॉटमेंट लेटर्स तैयार करने शुरू किए। आवाम को भरोसा दिलाने के लिए वो उन्हें लेकर हैदराबाद रंगारेड्डी कलेक्टर दफातर को भी जाया करते थे। एक शख्स से 10 या 20 हजार रुपए लिए जा रहे थे। इस टोली की सरगना ज्योति इससे पहले भी जुबली हिल्स पीएस में ऐसे ही केस में मुलविस रह चुकी है। इस टोली के कब्जे से 1 लाख रुपए की नकद रकम और दूसरा साजो सामान जब्त किया गया है। का इलाके में रहने वाला महकला विजया और सुनील सिंह और 2 आदमी, ये लोग ये जो कॉमन पीपल को जो जरूरत है वो मिडिल क्लास एरिया में रहने वाला वो लोगों को डबल बेडरूम दिलाते बोल के वो लोगों को आस दिला के तकरीबन 200 लोगों से ज्यादा लोगों को ये लोग पैसे वसूल करके वो लोग ज्यादा 2 साल से ये लोग आज करते कल करते बोल के ये लोगों को घुमा रहे। और कभी थोड़े लोग कोई प्रेशर करे तो उसको लेके एमआरओ ऑफिस को जाना, आरडीओ ऑफिस को जाना, कलेक्टरेट को जाना, सेक्रेटेरिएट को जाना, जाके हम लोग आपका केस ही परस्यू कर रहे बोल के वो लोगों को यकीन दिलाने के चक्कर में वो लोग ऐसा घुमा रहे थे। तो थोड़े लोग बर्दाश्त नहीं होके ज्यादा टाइट करे तो ये लोग क्या करे, रबर स्टाम्प्स बनाए आरडीओ का और थोड़ा आरडीओ का और गवर्नमेंट का बना के फेक अलॉटमेंट लेटर्स 200 तक अलॉटमेंट लेटर्स तैयार करके रखे। वो पूरे हम सर्चेस में ये पूरा बरामद कर लिया और 1 लाख कैश भी वो लोगों के पास हमको बरामद हुआ। ये जो महकला विजया है सेम सिमिलर ऑफेंस में जुबली हिल्स में भी इनके ऊपर एक केस है, ऐसा डबल बेडरूम अलॉट कराते बोल के उन्होंने पहले भी ऐसा चीट करे सो है पब्लिक को। तो वो केस भी है, उसमें कितना विक्टिम्स है, इसमें कितने विक्टिम्स बनते, अब तक तो 200 से ज्यादा बोल के अपने को समझ में आ रहा और इससे ज्यादा भी होंगे, बढ़ के भी होंगे डिफरेंट लोकेलिटी से। वो सबको इन्वेस्टिगेशन में चतरना का इंस्पेक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन में पूरा निकालेंगे। अमेरिका में फायरिंग के वाक़े में तेलंगाना का एक नौजवान हलाक हो गया है। महलूक की शनाख्त रंगारेड्डी के केशमपेट के साकिन 27 साल प्रवीण की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि प्रवीण अगस्त 2023 में अमेरिका गया था। डाटा साइंस एमएस में वो दूसरे साल का तालिब इल्म था। गुज़िश्ता साल दिसंबर में वो हैदराबाद भी आया था। बताया जाता है कि मुश्तबा रहज़नी के वाक़े में प्रवीण को गोली मारी गई है। मुकामी पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। प्रवीण के अफराद ख़ानदान सख्ते में देखे गए हैं और उनका मुतालबा है कि प्रवीण की लाश को हैदराबाद लाने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमत ताउन करें। बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने अमेरिका में तेलंगाना के नौजवान प्रवीण की हलाकत की बदबख्ताना से करार दिया है। महलूक के अफराद खानदान से इज़हार ताज़ियत करते हुए कविता ने कहा कि अमेरिका और तेलंगाना की हुकूमत से वो अपील करती हैं कि प्रवीण की लाश को लाने के लिए मुमकिन ताउन फराहम करें। Well, it's very unfortunate. I heard about that news and I truly demand that the Telangana government and I request the central government to quickly process and get the body home because parents here must be suffering. My prayers are with the family. My prayers are with the students who are there. They must be frightened and afraid. Please stay brave. Indian Embassy, Indian government, I'm sure will come to your rescue. तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने टेटेनस वैक्सीन और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का नाक़िस तरीके से ज़ख़ीरा करने पर सुल्तान बाजार में धावा करते हुए भारी मकदार में इंजेक्शन जब्त किए हैं। बताया गया है कि 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज हरारत में इंजेक्शन का ज़ख़ीरा करना चाहिए, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। इसके अलावा ड्रग कंट्रोल के अहदेदारों ने बिना लाइसेंस हनमकुंडा में 80,000 रुपये मालियती अद्वियात को जब्त किया है।
DCA نے इंतबाह दिया कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में सीमेंट की लॉरी और मुसाफिर बस के तसादुम में 3 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि मुसाफिर बस हैदराबाद से काकीनाडा जा रही थी। तफसीलात के मुताबिक रवाना ट्रैवल्स की बस खड़ी हुई लॉरी से टकरा गई। 3 जख्मियों व शमूल ड्राइवर की हालत नाजुक बताई गई है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एलुरु ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जुबली हिल्स इलाके में वाटर वर्क्स की तरफ से एक शख्स को पीने के पानी से अपनी बाइक धोने पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। वाटर वर्क्स की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि पीने के पानी का इस्तेमाल मोहतात तरीके से करें और गैर ज़रूरी कामों के लिए इसका इस्तेमाल न किया जाए। बाज़ इलाकों में ज़मीन में पानी की कमी को लेकर बलदिया की तरफ से अवाम को मशवरे भी दिए जा रहे हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। SC ज़मराबंदी मसवदा बिल को काबीना में मंजूरी। 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी और बजट इजलास की तारीख को क़तियत देने पर भी तबादले ख़याल। MLC नशिस्त पर कांग्रेस की शिकस्त, BJP और BRS की मिली भगत। बहुत जल्द BJP को भी इसी तरह का तोहफा दिया जाएगा, श्रीधर बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासती स्टेट गेस्ट हाउस का वुज़रा ने किया इफ्तिताह। साबिक़ वज़ीर आला के कैंप ऑफिस को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया गया। और डबल बेडरूम मकानात के फर्जी अलॉटमेंट का रैकेट बेनकाब। 4 अफराद बशमूल खातून गिरफ्तार, साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई।
اور ناظرین اسی کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV. خدا حافظ.